यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या है 48%, बट दिस 48% इज मच मच बेटर देन 55%. वाई? कैन एनीबडी टेल मी वाई? No, 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 no. Price actions. I'm not bothered about price action. The rules. The rules. Yeah, Ayush, you are right. The rules. Uptrend. When we follow the uptrend by 6 months and 12 months, the rules. So this you have. It is more of an art than precise science. This 48% is much better. But here again, the problem is my LTs or my large traders are selling, and my price is going up. Now, one very important question to every one of you. अगर मेरा LT indicator is showing down and my price is going up, so can't it be possible when my LT is showing an uptrend and the price can be going down? How do you think about this? सोच के बताओ. अगर मेरा यहाँ पर LT नीचे जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है. तो पिछला 3 महीना में, 4 महीना में, 6 महीना में 90% ऑफ द पीपल व्हाट दे आर डूइंग कि सर LT नीचे से घूम गया है, कॉर्ड की वैल्यू ऊपर चली गई है और 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स का रूल फॉलो हो रहा है, तो क्या हम इस स्टॉक को ले लें? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि सिर्फ ये 2 चीज़ें देख के ले लो. आप अगर ये चीज़ सुबेक्स में जाके देखते हो, अगेन आई विल गो बैक टू सुबेक्स, सी दिस, यहाँ से मेरा LT टर्न हो गया है. From 28% they have gone to 46%. But has the price of Subex done anything in the last 10-12 weeks? वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है. नीचे गया, ऊपर गया, ऊपर गया, नीचे गया, कुछ भी नहीं हुआ है उसके अंदर. पर मेरा LT तो ऊपर चला गया ना. तो इज़ द कॉर्ड स्टडी नॉट वर्किंग? और मेरे कमर्शियल्स यहाँ पर सेटअप थे और यहाँ पर मेरे रूल्स भी सेटअप थे. नो, इज़न्ट दिस कन्फ्यूजिंग? Because I need to give you these case studies to confuse you, because you have to think rationally and not follow blindly anything. Isn't this confusing? Guys, be attentive in the chat. तभी आपको सीखने को मिलेगा, नहीं तो आप फिर वो सिर्फ एक इंडिकेटर ही फॉलो करते रहोगे. ठीक है. नाउ व्हाट वाज हैपनिंग ओवर हियर, ये मेरा कौन सा पीरियड है? नवंबर के बाद का पीरियड है. सुबेक्स, मैं बार बार सुबेक्स और HFCL पे आ रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ योर कंपनी जो आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोजली ट्रैक करते हैं. सुबेक्स, what is happening over here? My longer term market strength is going down. My longer term market strength is going down. So why should I take this call? Why cannot I avoid this call? इसको करने का एक तरीका और है, मैं अभी डिस्कस कर दूंगा वो. इसको करने का तरीका क्या है? वाई शुड आई टेक दिस कॉल एंड वाई शुड आई स्टक माई कैपिटल? पैसा तो लिमिटेड है ना, अनलिमिटेड तो किसी के पास नहीं होता. वाई शुड आई टेक दिस कॉल एंड बी वेटिंग फॉर सो मेनी वीक्स एंड पुट माई रिटर्न्स डाउन व्हेन द मार्केट इज डूइंग समथिंग वेरी ग्रेट? ट्रेडर्स कैन मेक गुड रिटर्न्स, राइट? बिकॉज माई लॉन्गर टर्म strength in the marketplace is going down. अब करना क्या है? कैसे हम इन दोनों के प्लस पॉइंट्स को ले सकते हैं? कैसे हम इन दोनों के पॉइंट्स को लेके अपने फ़ायदे के लिए और अपने ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हैं? क्या ये सवाल आप लोगों के दिमाग में नहीं आता कि जब दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती हैं, कॉन्ट्रेरी खड़ी हो जाती हैं, कैसे हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं? द फर्स्ट पॉइंट टू यूज़ दिस थिंग इज दिस was the month of June 2020. Yes, RSI M plus COT W, absolutely Sunny ji. This was the month of June 2020. Sorry, July 2020. What was here happening in July 2020? I'll remove the annotations. July 2020, July month ended over here. What was actually happening in July 2020? Was this a breakout? The breakout happened here, but something was happening. The court was not set up and they were going down, right? Now this is the time, it is your time to study the business. And when do you pile on? ट्रक कब भरना है? आपको ट्रक कब भरना है? Yes, the every basic setup is not a buy, absolutely. Now the question is,
when do you have to load, when do you have to give good allocation, and when you give a good allocation you can make good returns. My good allocation, I use it is more than a trend. My good allocation would be on this setup. ये my good allocation would be on this setup rather than this setup. Getting it? Because मेरे को यहाँ पर एक ट्रेंड इंडिकेशन मिला है ऑन द हाई ऑफ दिस कैंडल. मैं अज्यूम करने की बात ही नहीं करता हूँ, मेरे को तो सिर्फ उसका हाई 9 रुपीज़, 10 रुपीज़, 12 रुपीज़. दिस इज़ माई एरिया, दिस इज़ माई एरिया टू बाय माई फर्स्ट ट्रेंच, एंड दिस इज़ माई एरिया टू लोड माई ट्रक. कि यहाँ जाके मुझे अच्छी मोटी पोजीशन भरनी है. दिस इज़ माई एरिया टू लोड माई ट्रक. इफ़ आई सी द रिटर्न्स फ्रॉम ईयर टिल ईयर, it was 9 weeks, the market moved 28%. But from here, where do you have to load your truck from year, probably year to year, it was 8 weeks and the market moved 180%. Yes, internally, RSI internally थोड़ा सा code changed है. I will share the code, I will share the indicator with you. Don't worry about the indicators and all. Are you seeing this? 8 to 9 weeks the market moves 28%, but in the next 8 weeks it moves 183%. Why? What do you have over here? You have the strength, the longer term strength. RSI using on the monthly. Ashish ji will do all that. First get the concept in your mind, and this is not overbought and oversold indicator. This is your indicator for the strength. और यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ पता चली. नाउ इफ़ यू हैव सीन द केस स्टडीज़ जो मैंने पुराने कॉर्स ग्रुप में शेयर करी थी, आई हैड ब्रोकन द रूल्स. वाई डिड आई ब्रोक द रूल्स? लेट्स गो टू अवंती फीड्स. आपको अवंती फीड्स की एक केस स्टडी बताई थी. वॉट इज़ देयर टू ब्रेक द रूल्स? और उस टाइम भी समझ नहीं आया था कि हाउ डू यू ब्रेक द रूल्स. सॉरी, दिस इज़ BSc. दैट वॉज वन रीज़न सर, फंडामेंटल रीज़न मैंने शेयर किया था उस टाइम. और दिस इज़ माई केस स्टडी टू ब्रेक द रूल्स. दिस वॉज दिस पीरियड, समवेयर दिस पीरियड. क्या यहाँ पे आपका कॉर्ड का सेटअप है? हाँ है. क्या यहाँ रूल्स फॉलो होते हैं? वो अप ट्रेंड वाले बिल्कुल भी नहीं होते हैं. Is my price 6 months, 12 months? Absolutely no. Then why did I buy here? ये ऐसा सेटअप और ऐसा सेटअप तो कई जगह मिल जाता है. Why? This was August of 19. See what did happen in August of 19. This is August के बाद September year. I bought here in maybe on some fundamentals. But what did happen over here? The traction started here. The traction started here. Now everything is not mechanical, a formula. You finished here and you came down here. For this, you were getting into high zone at the end of the trend. No, it is not monthly or something. I bought this company due to some fundamentals over here. The large traders or the targets ended over here. But this was not showing me absolute things. Why not I go and check at the weeklies also? Just to get a confirmation. Now see what did happen. At the price of 412, मेरे का तो प्राइस मिल गया था around 290 300. At the price of 412, before the results were coming out, see what my trend was giving me an indication. ठीक है, ज़रूरी नहीं है मंथली, आप उसको वीकली और मंथली को दोनों को मिक्स कर सकते हो जहाँ पर आपको अच्छा ट्रेंड मिले. बिकॉज वीकली विल मूव बिफोर एंड द मंथली विल मूव लेटर, राइट. वाई डिड आई एग्जिट? दिस वॉज माई एग्जिट, माई विल स्टॉप लाइन. कभी भी आपका विल स्टॉप लाइन पे वो आ जाए प्राइस, आँख बंद करके एग्जिट कर देना. उस टाइम बुरा बहुत लगता है कि यार मेरे M2M में इतने पैसे दिखा रहा था, इतना गेन आ रहा था, पर मैं एग्जिट कर देता तो अच्छा होता. और कभी कभार वो एग्जिट करा के स्टॉक प्राइस फिर ऊपर चला जाएगा, आपको फिर बुरा लगेगा. बट यहाँ तक ये सुपर बुलिश जोन से नीचे आ रहा था. सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सपोर्ट? स्मॉल सपोर्ट इज़ हियर एंड मेजर ओवर हियर, बट इट वेंट डाउन ड्रास्टिकली.
It went down drastically. Why you should have not bought over here? That is one question. This was a whipsaw. Why you should have not bought over here? सोचो, यहाँ पर अगर ये वीकली में देख रहे हैं और ये RSI मेरा 60 के ऊपर जाता है तो मुझे यहाँ क्यों नहीं लेना चाहिए था? सोचो सोचो. Let's see who gives this answer. I'll wait for 1 or 2 minutes. Willstop was not giving entry. Willstop की एंट्री तो आपको पहले बार आ चुकी थी. Why you should have not bought over here? हाँ, that is one thing. Check monthly small candle, वो सब चीज़ें नहीं है. I'll tell you the truth. I bought over here. अगेन मैं सच बात बोलता हूँ, ज्ञान देना बहुत आसान है. जब मार्केट चल रहा होगा, जब आप एनालिसिस करोगे तब ये ज्ञान याद नहीं आएगा. आई बॉट ओवर ईयर अगेन बिकॉज आई वॉज फैसिनेटेड विद दिस रन, मेकिंग एंडलेस अमाउंट ऑफ मनी. आई बॉट ओवर ईयर बिकॉज अगर ये ब्रेकआउट है तो ये कैंडल इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर बंद हुई है. बट वॉट डिड हैपन? In the very next candle, this broke the low of this candle and I exited over here out of fear कि मैंने गलती कर दी. In the very next candle, this is another learning. चाहे आप डेली चार्ट देखो, वीकली देखो, मंथली देखो, अगर आप एक रेंज में चल रहे हो, दिस इज योर रेंज, दिस इज योर रेंज, राइट? कैन यू सी दिस रेंज? आप इसको डार्वास बॉक्स बोलो, इसको कुछ भी बोलो, नाम में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है. एंड आई ब्रेक दैट रेंज आफ्टर सो मेनी वीक्स और सो मेनी डेज and I close above the highest point of the range, and in the very next candle I break the low of the breakout candle and eventually the low of the one candle prior to the breakout candle. This is the time, 110% time to just square off and run and save your life, because आगे जाके आपको ये सब चीज़ें मिलेगी. You could have shorted Avanti over here because चलो कैश में आप शॉर्ट नहीं कर सकते, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज you could have shorted Avanti over here, shorted at this price, at 500 price, went to 385 and over here your stop loss got triggered. You should have shorted over here. You could have bought Avanti over here on a weekly on this down candle before the breakout. Can you see my mouse pointer? Before the breakout. यहाँ भी आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा. You could have bought Avanti over here and made good return in this next few weeks. Now again weekly में भी आपको whipsaws, इसलिए 90% of the time give value to the monthly chart, 10% of the time give value to the weekly chart. Don't go on daily or intraday or options or FNO. वो हमारा काम नहीं है. उसमें पैसा आपका एक दिन बनेगा, अगले 2 दिन में जाएगा. ठीक है? Now see this thing, यहाँ से लेके यहाँ तक so many weeks. क्या मैं एक बार भी बुलिश जोन में गया? नहीं. क्या मैं डाउन ट्रेंड में नहीं हूँ बिकॉज विद विल स्टॉप? क्या मैं डाउन ट्रेंड में नहीं हूँ? सॉरी, दिस इज नॉट वीक्स, दीज आर मंथ्स. फ्रॉम जून 2020 टिल दिसंबर 2021, 1 साल से हो गया ऊपर. क्या मैं एक बार भी बुलिश जोन में गया एज पर विल स्टॉप? नो. क्या मैं एक बार भी बुलिश जोन में गया एज पर माई स्ट्रेंथ इंडिकेटर? नो. So should I be taking these chord setups over here? This is also a good chord setup. So should I be taking this chord setup? No. Right? Now this is a debatable point. कोई बोलेगा हाँ, कोई बोलेगा ना. No. So should I be looking at this LT indicator turning up and यार सर LT तो घूम गया और इसको ले लेते हैं और अच्छा लग रहा है. और मज़े की बात यह है कि इसमें तो बहुत सारी ब्लास्ट ऑफ कैंडल्स बन रही हैं और इसमें क्या है कि ये नीचे से इसकी विक बन गई है और ये यहाँ से बाइंग हो गई है और इसमें आपका RS नेगेटिव हो गया या पॉजिटिव हो गया, बहुत सारी बातें हो गई, जो भी हो गया. क्या मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का कुछ ट्रेड लेना चाहिए था लुकिंग एट माई दिस थिंग? नो. नाउ क्या मुझे यहाँ पे, चलो ये एक अंदाज़ा है कि ये 60 के ऊपर चला गया और अगले बार ये नीचे आ जाएगा, जो भी चीज़ हो जाएगी इसके साथ आपका विल स्टॉप जो है वो मैच कर रहा है, राइट? अब वन मोर थिंग, क्या मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई भी ट्रेड या ब्रेकआउट या कॉर्ड का सेटअप लेना चाहिए? हाँ,
क्या मुझे यहाँ से यहाँ तक का कोई भी सेटअप लेना चाहिए विच वॉज 2013 टू 2015? अगेन अवंती फीड्स 2013, दिस इज़ योर 2013, यहाँ ये आपका कॉर्ड सेटअप एट द प्राइस ऑफ 6-7 रुपीज़ जो भी, दिस वॉज योर सेटअप, दिस वॉज अगेन योर सेटअप। क्या मुझे ये सेटअप्स लेने चाहिए थे? मैं आपको सिर्फ मार्किंग्स करके देना। चलो मैंने ये छोड़ दिया कि मुझे पता नहीं था, क्या मुझे ये वाले मार्किंग्स, ये वाले मेरे को कॉर्ड सेटअप्स लेने चाहिए थे, ये वाले कॉर्ड सेटअप्स मुझे लेने चाहिए थे, क्या ये वाले कॉर्ड सेटअप्स मुझे लेने चाहिए थे? क्या मैं इसको ऐसे नहीं यूज़ करता कि बिकॉज आई नो द ट्रेंड इज़ अप एंड आई एम लुकिंग एट अ मंथली चार्ट, व्हाई कांट आई यूज़ दीज टू ऐड माई ट्रेंचेस? Why can't I use these to add my trenches? And this, now this was powerful and this ट्रेंच ऐड करने का मतलब ये नहीं होता कि मैंने आज स्टॉक लिया और अगले 2 दिन में मैं उसका ट्रेंच ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? फ्रॉम नवंबर 2013 टिल जून 2015, मोटा मोटा 1.5 साल 2 साल। क्या मैं 1.5 साल में या 2 साल में अपने ट्रेंचेस नहीं ऐड कर सकता क्या? ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, ऑन अ वीकली चार्ट, राइट? हमको क्या सिखाया जाता है? ऐड योर ट्रेंच हियर एंड ऐड योर ट्रेंच देयर, ये सब चीज़ें। Now I am saying add your trenches, maybe 4 trenches or 3 trenches in 2 years. Now have I told you anything about the business still? कि what does the business do and what does it sell and what is the risk and what is the pros and what are the cons over here? Absolutely no. I am just talking about the technicals. Technicals can also be used to make good returns, not 5, 10, 20, 100%, maybe much more than that. बट एक ही सवाल है मेरा आपसे, क्या आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक का सब्र होता 1.5 साल का या 2 साल का एक ही स्टॉक पे या एक ही चीज़ पे चिपके रहने से? या आपको अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स में इतने सारे स्टॉक्स मिल गए होते, इतने सारे ब्रेकआउट्स मिल गए होते, क्या आप इसका प्रॉफिट बुक करके किसी दूसरे ट्रेड में चले नहीं गए होते? गिव एन ऑनेस्ट आंसर। एवरीबडी हैज़ इमोशंस, गिव एन ऑनेस्ट आंसर, राइट? 100 times we would have flip-flopped, 100 times. ठीक है? Now even if you, I'm not saying you have 5 crores 10 crores of portfolio, even if you have a 5 lakhs portfolio or a 10 lakhs portfolio, couldn't you have invest just 10% or 5% of your portfolio, looking at these things, combining this study, looking at the longer term will stop 5% 10% of the portfolio, and could have waited for 1.5 years? The returns were 800%. अभी क्या अच्छा है 20% में रॉकेट उड़ाना या 800%? द आइडिया इज टू फर्स्ट गो एट दिस, लुक वेयर द ट्रेंड इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, एंड देन द आइडिया इज then to mix your chord study and look at these setups. Now these setups are much more powerful. In spite of these are also the setups. ये भी 6 months और 1 year का टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हैं, इसमें भी LT नीचे है, लेकिन ये इतने पावरफुल नहीं है जितने ये वाले पावरफुल हैं। दिस शुड गिव यू समथिंग बल्ब ऑन मोमेंट इन योर माइंड कि सिर्फ चार्ट देख लेने से, उसको बिना समझे कुछ नहीं होने वाला। ज़िंदगी निकल जाएगी, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, पैसा नहीं बनने वाला अगर आप उसमें कोई एज नहीं रखोगे तो। मोर ऑफ एन आर्ट। नाउ एक चीज़ मैंने आपको और बोली जो आई एम 100% श्योर, इन द लास्ट मे बी 10-20 मिनट्स वी आर डिस्कसिंग, इन द लास्ट फर्स्ट थिंग विच आई हैव टोल्ड यू इज which you have forgot, the next time, that was the first time, this was my second time, the next time my longer term trend goes above 60, ये क्या है? ये फाड़ के बुलिश है, ये फाड़ के बुलिश है। यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस कुछ नहीं काम करने वाला, जितने मर्जी रेजिस्टेंस लगा लो, जितने मर्जी ट्रेंड लाइन बना लो, जितने मर्जी रिट्रेसमेंट लगा लो, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस नहीं काम करना। when the second time it goes above 60 level, which was April 2016, it was April of 2016, somewhere over here. Now give me a clue, यहाँ पर कौन सा ब्रेकआउट है? गिव मी अ क्लू। हाँ, QTL हो सकता है, मैंने नहीं देखा, सॉरी। यहाँ पर कौन सा ब्रेकआउट है, या स्ट्रेट लाइन मानो या कुछ भी मानो, आप अगर ये QTL देख रहे हो तो कितना टाइम इसमें खड़े रहते हैं? यहाँ पर कौन सा ब्रेकआउट है?
यहाँ पर ये LTs ऊपर जा रहे हैं, क्या आप ये वीक्स है ना, could you have waited for so many weeks, right? This is 26 weeks. Could you have waited for somewhere around 37 weeks? No, you would have not waited for 37 weeks. But the second time when it goes above, it went for few months, again came down, third time it went mad, it went to 90. अभी 100 के ऊपर तो जा नहीं सकता ना. 100 is my last number. Could you have waited over here? No. Does it give you a sense कि this God is more powerful than these ones? This जो मैंने ये बना के रखा, ये वाला, isn't this more powerful than these ones? In spite of my 6 months and 1 year rule being valid, what is more powerful? And now these LTs are more powerful. 200 रुपये का शेयर आपका सीधा 1000 रुपया, right? Again, look at any chart you want, any business you want, anything you want. See, to exit, I would have exited here. On a longer term time frame, I would have exited here. अगर मेरे को डर लग रहा है, अगर मैं लग रहा है कि यार मंथली स्लो चलेगा और मेरा ड्रॉडाउन आ जाएगा, आई कैन ऑल्सो लुक एट द वीकली चार्ट. आई वुड हैव exited here, definitely here, right? If I look at this was my first flip flop, this was my second time, which was again January of 2017. और यहाँ पर आप देख लो, ये January of 2017, again your Jan of 2017, which was somewhere around here. What did happen to the business? Now let's mix some angle in it. अवंती फीड्स, जनवरी का तो चलो क्वार्टरली नंबर अब आएगा नहीं. लेट्स गो एंड लुक इन दिस ओनली, ट्रेडिंग व्यू ओनली. इसमें पुराना डेटा आ जाएगा हमारे को. फंडामेंटल्स, एवरी वन ऑफ यू हैज़ गॉट ट्रेडिंग व्यू प्रो और प्रो प्लस वर्जन. यू कैन मेक अ फंडामेंटल टेम्पलेट. मैंने पहले भी आप लोगों को बताया ये फंडामेंटल टेम्पलेट. January of 2017 it was. What was happening? ये मेरा Q4 का रिजल्ट्स है. My profit from 411 million went to 1.49 billion. एक ही अगले जनवरी और जो Q1 का रिजल्ट आया था उसमें मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, पिछले क्वार्टर से डबल. और इस Q1 को मैं पिछले Q1 से कंपेयर करता हूँ, परसेंटेज आप खुद निकाल लो. मैं रेवेन्यू और एबिट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ. आप चाहे ईपीएस देख लो या कुछ भी कर लो, क्या आपको इन चीज़ों से पता नहीं चलता कि क्या कहाँ पे आपकी लॉन्गर टर्म स्ट्रेंथ है. और बैठे रहने से ही पैसा बनेगा. मान लो ये मेरा एक फ्लिप फ्लॉप हो गया, ये वी स्टॉप हिट हुआ और वापस वी स्टॉप ने एंट्री दे दी, मैंने तो इसके हाई पॉइंट पे लिया. इज इन दिस रिटर्न अ गुड रिटर्न इन अ मैटर ऑफ 28 वीक्स, 1.6x, राइट? एंड इफ़ आई वुड नाउ मैं पंकज जी मैं लेता हूँ उसको हिकाल को भी, जस्ट लेट्स बी ऑन दिस फॉर फ्यू मिनट्स. नाउ ये फ्लिप फ्लॉप है, ये फ्लिप फ्लॉप है ना, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ कि नहीं हुआ? एनीबडी? वन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, इससे कैसे बचोगे, ये फ्लिप फ्लॉप से कैसे बचोगे? कोई बता सकता है मैं इस फ्लिप फ्लॉप को कैसे इग्नोर करूं, कैसे अवॉइड करूं? विद अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. यस, with my advanced swing points, and over here my advanced swing point was going up and it was nowhere a sell over here. Advanced swing point was absolutely going up. I could have avoided this. Check RSI also in the period of August 17, वीकली और मंथली. August 17, जून, जुलाई, अगस्त सितंबर में तो ये अल्ट्रा बुलिश जोन में जा रहा था. ये यहाँ पर ये तो अल्ट्रा बुलिश जोन में जा रहा था. एंड दिस एडवांस स्विंग वुड हैव सेव्ड मी ऑन अ वीकली, ऑन अ मंथली. सी सर, दिस इज ऑन अ मंथली. अगस्त ऑफ 17, 16, 17. मतलब ही नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है. मई के महीने से आई वॉज ऑन द अल्ट्रा बुलिश जोन.
I could have avoided that on my weekly time frame. This is my ultra bullish zone. What was my COT doing over here? 2017. It was again getting set up over here. Now, one more important point. ठीक है, वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट. अभी सोचो, ये ऊपर जा रहा है, दीज गाइज आर सेलिंग. अगेन कंफ्यूजन है कि नहीं? यस और नो? नो, व्हाट टू डू? हाउ डू आई अवॉइड दिस? I will have to go back to my previous settings on the page. Just give me 1 or 2 minutes. How do I avoid these flip-flops? This is how I avoid those flip-flops. The advanced last trader index. This is my advanced 2017 की हम बात कर रहे थे. 2017. They started selling here in the month of July, and they were selling here. My advanced last trader index give me some indications of a topping around here in the month of October. Right? They started selling in July. Prices were going up. My advanced last trader index, जो अभी आप लोगों के पास नहीं है, but you will get this after the session, started selling here. Right? One very good example I want to show you. Why is Subix not doing anything? Why the problem? This is the problem. Sir, LT तो घूम गया है, क्या हम इसको ले लें? Now go back, maybe I don't know, शायद 1 hour हो गया है, maybe go back 1 hour of your time and now think what is happening. What is this advanced last traders index? This advanced last trader index will give you an entry and at most times enable you to be in the trend, not get out because of flip flops. Again, look at this. It entered here. Last traders entered here. पॉइंट ऑफ एक्स्ट्रा बुलिशनेस मेरे को तो लास्ट ट्रेडर्स आर बाइंग. यहाँ पर आपका 6 months और 1 year का रूल कहीं ना कहीं फॉलो होता है. दिस वॉज योर एंट्री पॉइंट. अगेन योर LT स्टार्टेड सेलिंग. अगर मैं सिंपल वो स्टडी करूँ या सिंपल लॉजिक रखूँ, दिस इज़ माई दिस एंड दिस इज़ माई लोअर हाई एंड दिस इज़ अगेन माई लोअर हाई. राइट? ऐसे ही करते हैं ना, हायर हाई और लोअर हाई, ऐसी चीज़ें हम लोग देखते हैं. व्हाट इज़ दिस? देखो, क्या ये आपको एक बार भी एग्जिट दिया यहाँ से यहाँ तक? क्या मैं इस स्टडी को यूज़ करके, और ये जो स्टडी मैंने अभी इसके साथ सपोर्टिव टूल यूज़ किया था, can't I get to some conclusions? Can't I get to some conclusions? This is not a sell over here. This is one thing, because सब लोग ये भूल गए कि यहाँ पर एडवांस स्विंग ऊपर जा रहे थे. अगर आपको एडवांस स्विंग नहीं भी बनाना आता, isn't this easy for your eyes to see? Isn't this easy for your eyes to see, giving you a double confirmation? Isn't this easy for your eyes to see? Right? Now see this, see the difference. Then why not out now, sir? Sir, I did not understand your question. What are you asking? I'll take your question later on. Let's first focus on what we are trying to do. Right? Now give me any of your chart which you want to see. Don't bombard the group with many names. Give me 1 or 2 names. Let's try and analyze. अरे बाप रे, सबके अलग अलग होंगे यार, सबके अलग अलग होंगे. चलो लॉरस लैब देखते हैं. लॉरस लैब्स. लॉरस लैब कहाँ बेचना शुरू किया? वेट, लेट्स
सी इट टेक्स टाइम टू एनालाइज वन थिंग एंड इतने सारे तो विल टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम. लॉरस लैब कहाँ बेचना शुरू किया? आप देखो मेरा माउस पॉइंटर कहाँ है. इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021, probably maybe 19-20th of July, जो भी उस वो वीक था, राइट. बेसिकली वेयर द मैसिव फॉल स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, राइट. नाउ कॉर्ड इज अगेन गेटिंग सेटअप. ये वाला 6 मंथ से ऊपर है और 1 ईयर से ऊपर है. हमने अभी यही सीखा था, कॉर्ड इज अगेन गेटिंग सेटअप. और क्या यहाँ पर नोशन आएगा, सर मेरा LT तो घूमने वाला है, क्या मैं लॉरस लैब ले लूँ? मैं वो बात कर रहा हूँ कि अभी मुझे बिज़नेस के बारे में कुछ नहीं पता, एज अ फ्रेशर. सर क्या मैं लॉरस लैब ले लूँ? ठीक है, मैं कॉर्ड इज सेटअप. बॉस पहले एक पे तो फोकस कर लो. सब लोग अपने अपने नाम दे रहे हैं, इतने सारे नाम करना तो सुबह के 6 बज जाएंगे. क्या मैं लॉरस लैब ले लूँ, हाँ कि नहीं? प्रोसेस पे तो फोकस कर लो. स्पून फीडिंग कब तक मैं करूँगा आपको? मेरा LT घूमने वाला है राजू जी, LT घूमने वाला है. यहाँ से तेजी आ जाएगी. वाई शुड आई गो एंड चेक व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? लॉरस लैब्स, दिस इज नाउ सी व्हाट